Hello everyone, hope you are doing well. So I am Mansi Riyani and today we are conducting a webinar on Busy for Cosmetic Store. In this webinar, I will explain all the steps for the configuration of cosmetic store in Busy. First, I will present you the topic Busy for Cosmetic Store with the help of PPT, and after that I will show you practical steps in Busy. Through this presentation, we will understand how to manage cosmetic store in Busy. If you have any doubts and queries, you can ask at the end of the session. Now I am starting the presentation. Busy for cosmetic industry. Learning objectives. At the end of this webinar, you will able to understand how to easily manage retail business for cosmetic industry. The cosmetic industry refers to the sector that encompasses the production, sale, and distribution of products designed for personal care and beautification. It includes a wide range of products such as skincare items, makeup, hair care products, fragrances, and personal hygiene products. That's where Viji comes in. Viji is a comprehensive business accounting and a management software that can help cosmetic shops to improve their operational efficiency and increase productivity. Features useful for cosmetic industry. Barcode and settlement. Brand and category wise stock reporting. Configurable invoice printing. Salesman with commission. Target management. MIS reports. Scheme and offers. Item description for extra information. Sales analysis with graphs. Text inclusive and exclusive billing. SMS, email, WhatsApp integration. Expiry management. Mobile app integration. Hold vouchers. Physical stock verification. Minimum, maximum stock management. Discount management. So basically, you can manage various features in Busy that is useful or helpful for cosmetic industry. You can manage POS billing with barcode scanner and you can use the settlement in which mode your customer is doing the payment. Brand and category wise stock reporting you can maintain. For the products we have different brands, different category of products we have. We can see brand on category wise stock reporting. Configurable invoice printing. We can print invoice as per our choice. You can print the QR code scanner also, by which you can do any UPI payment. Salesman with commission. We in a cosmetic industry we have a various salesmen, so you can maintain salesmen with their, we can define salesman by target, or you can maintain salesman with commission. That what is a particular commission for selling this product for a particular salesman. Target management. You can manage target management on the basis of item, on the basis of party, on the basis of salesman. We have various options in Busy. You can manage target management in Busy. MIS report. We can check profitability report in Busy, bill wise, item wise, salesman wise. We have various profitability report in Busy to check. Scheme and efforts. As you see, there are many schemes which can be applied on cosmetic industry or cosmetic shops. We can manage various type of schemes in Busy. Item description for extra information. If you want to maintain extra description for item, that this item belongs to this product, the description we want to give, there's what are the ingredients for this particular cosmetic product. We can define extra information for a particular product wise description we can maintain in Busy. Sales analysis with graph. You do per particular sales for a month. We now at the end of the financial year, we want to see which is the highest month in which
the sale has been made. We can check the graph wise, graph pie chart wise, graph wise, we can check the sales analysis report. If we have an option in Busy, tax inclusive means GST inclusive or exclusive billing you can do in Busy. As per the option you want to opt, you can do the exclusive billing or the inclusive billing. Inclusive billing means on which item the GST is already included. Exclusive billing means the amount on which the GST has to be applied on that particular amount. SMS, email, WhatsApp integration. We have a various option. You can set like a customer came to at your shop. They purchase some of the items from your shop. After purchasing the products, we provide the bill to the particular customer. We can send the SMS on that customer on WhatsApp, SMS, email. We can send integration for that this is the purchase item for particular this product. This is the purchase price for particular this product. You can manage various type of SMS, email, WhatsApp integration. Expiry management. If you want to see what are the expiry management, if you want to see that what is the expiry for particular this product, this item going to expire in particular few months. If you want to see the stock expiry wise management, you can see stock expiry wise items. For particular this product, the expiry date is this. For particular this product, the expiry date is this. You can see the expiry date wise stock. Mobile app integration. We have an option of mobile app in Busy. You can do the invoices from that particular mobile app. You can check 100 reports from mobile app, the unmoved items, the top most reports you can check from mobile app, that what is the highest item which we sell in particular this month. This is the lowest item you sell in particular this month. Hold voucher option. Like you are doing the POS billing. The customer came to you and they said, just hold the voucher. I want to buy some other products also. Just don't pass the bill. So other person is waiting in the queue. So what you do, you can hold the voucher for particular that customer, and the next person standing in the queue, you can pass the voucher for the next person. After the previous customer came to you that this is the extra item I purchased, now pass the bill. What you can do, you can unhold that particular voucher and pass the voucher for particular extra items which you added in the bill. So we have an option of hold voucher. This is a very important feature, hold voucher in POS billing. So that this is the time saving process for hold voucher. This is the time saving process for in Busy. Physical stock verification. We have a physical stock verification in Busy. फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन इन Busy, हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिजिकल स्टॉक जो है हमारा हम मेंटेन कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक मैनेजमेंट. हम अब जैसे पर्टिकुलर कुछ स्टॉक ऐसे हैं, इनका हमें मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है, मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन करना है और रीऑर्डर. लेट सपोज एक आइटम ए है या पर्टिकुलर एक लिपस्टिक आइटम है, उसका मुझे 100 मैक्सिमम स्टॉक रखना है क्योंकि ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो बहुत कम सेल होती है. तो मैक्सिमम मुझे रखना है 100 और मिनिमम मुझे रखना है 50. दैट दिस इज द मैक्सिमम लिमिट एंड दिस इज द मिनिमम लिमिट. और किस क्वांटिटी मुझे उसको रीऑर्डर करना है कि ये क्वांटिटी जब रीच कर गई है तो हमें रीऑर्डर करना है उस वाउचर को. तो हम फिजिकल मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर स्टॉक वाइज मेंटेन कर सकते हैं और रिपोर्ट भी देख सकते हैं. डिस्काउंट हम मैनेज कर सकते हैं. जैसे पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे आपका पर्टिकुलर आइटम पे डिस्काउंट लगते हैं कि जो मैक का प्रोडक्ट है उस पर हम 10% डिस्काउंट देते हैं, जो रेवलॉन का प्रोडक्ट है उस पर हम 5% डिस्काउंट देते हैं. अब क्या हुआ, कस्टमर आपके पास आया, आपने डिफरेंट इस कस्टमर ने आपसे डिफरेंट आइटम परचेज करी, रेवलॉन की लिपस्टिक परचेज करी, मैक का कॉम्पैक्ट
परचेज करा, तो आप क्या करेंगे कि आपके एक ही वाउचर में डिफरेंट डिस्काउंट्स हो गए, तो आप क्या करेंगे, आइटम वाइज डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं इस केस में कि रेवलॉन का 5% है और मैक का 10% डिस्काउंट है, वी कैन मैनेज दैट ऑप्शन कि आइटम वाइज डिस्काउंट वी हैव इन बिजी। होल्ड वाउचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस। आपको वेट नहीं करना पड़ता अदर पर्सन, जैसे कोई खड़ा हुआ है लाइन में तो उसको वेट नहीं करना पड़ता, वो अपने नेक्स्ट बिलिंग करा सकता है, और जब वो पुराना पर्सन आएगा तो जो उसने उसने एक्स्ट्रा आइटम परचेज करी है वो आप अनहोल्ड करेंगे वाउचर, वो नई आइटम ऐड करेंगे और पास कर देंगे बिल उसका। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। सेकंड है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला है कि आप कंपनी क्रिएट करेंगे। सेकंड क्या है कि अब जब आपने कंपनी क्रिएट कर दी उसके बाद जो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप उसकी सेट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने सेट कर दी है। मास्टर्स, जब आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी, मतलब हमने सारे फीचर्स इनेबल कर दिए, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट मास्टर्स। जैसे हमने आइटम मास्टर क्रिएट कर दिए, कैश अकाउंट क्रिएट कर दिया, जो आपको सेल्समैन क्रिएट करने हैं वो आपने सेल्समैन क्रिएट कर दिए जो आपकी शॉप्स पे सेल्समैन है। ट्रांजेक्शन, जब आपने कंपनी क्रिएट कर ली उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली, मास्टर्स क्रिएट कर लिए, तो आपकी कंपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ रेडी है। जब आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन मास्टर्स और सब रेडी हो जाएंगे तो आप ट्रांजेक्शन के लिए रेडी हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, जब आप ट्रांजेक्शन पास करेंगे और कस्टमर आपके पास आया, आपने सेल वाउचर पास करा, तो लास्ट में क्या होगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के देंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे ले आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वेरियस रिपोर्ट्स हैं, सेल्स माइन वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हम बिजी में चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स बिजी में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो हमने कंपनी क्रिएट करी है बिजी कॉस्मेटिक स्टोर से। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा ये हम बता सकते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से वो कंपनी आपकी स्टार्ट हो रही है, और उनके क्या क्या है, स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट से वो जो शॉप है वो बिलोंग करती है। और बुक कमेंसिंग मतलब आप अपनी बुक्स है वो, मतलब एक्चुअली में जो बिलिंग स्टार्ट होगी वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगी, तो वो जब से आपका लाइव होगा डेटा, तो आप बुक कमेंसिंग फ्रॉम वो पर्टिकुलर दैट डेट डिफाइन करेंगे। उसके कंपनी क्रिएट के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकाउंट्स में कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो हमें इनेबल करने पड़ते हैं। जो पहला फीचर है हमारा टारगेट फीचर, हमें टारगेट फीचर इनेबल करना पड़ता है। लेट सपोज आपके बहुत सारे सेल्समैन हैं, तो आपने क्या होता है कि हर पर्टिकुलर सेल्समैन को आपने हर महीने का टारगेट दिया हुआ है कि सेल्समैन ए को 1 लाख की सेल करनी है, जो सेल्समैन बी है उसको 1 लाख की सेल करनी है। अब आपको क्या करा कि आपका मंथ क्रॉस हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इतना टारगेट सेट करा है, अब उस पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितनी सेल करी है, तो आप वो टारगेट के बेसिस पे उसका टारगेट वेरिएंस रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक्चुअल में मैंने इस पर्सन को, सेल्समैन को ये टारगेट दिया था और इस मंथ में उसने इतना अचीव करा है, तो आपका डिफरेंस अमाउंट आपका ये कम करा है ये ज्यादा करा है, तो उसके बेसिस पे उसकी कमीशन भी बन जाएगी, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी वो। मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आप पेमेंट वाउचर पास कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि हम डिफरेंट मोड से कस्टमर पेमेंट करता है, कभी कभार वो कैश से पेमेंट करता है, बैंक से पेमेंट करता है, यूपीआई पेमेंट करता है। तो अगर अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मेंटेन करने हैं कि कौन से मोड से व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, कौन से मोड ऑफ पेमेंट से वो पेमेंट कर रहा है पर्टिकुलर कस्टमर, उसके लिए आप बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल मेंटेन कर सकते हैं पीजी में। तीसरा ऑप्शन क्या है, सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, हम सेल्समैन फीचर इनेबल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्समैन है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन हैं, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन मेंटेन करने हैं पीजी में, तो हमारे पास वो ऑप्शन है। जब आप वाउचर पास, आपने सेल्समैन इनेबल करा, वाउचर पास करा, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ही सेल्समैन एक कस्टमर को अटेंड करेगा, तो ये आप ये बता देंगे जो ये हम वाउचर पास कर रहे हैं ये थ्रू दिस सेल्समैन आया, कि ये ए सेल्समैन से आए, ये दूसरा वाउचर जो आया वो बी सेल्समैन से आया।
तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्समैन वाइज वाउचर में टैगिंग कर सकते हैं और आप सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने इस वाउचर की सेल करी है और इतनी टोटल सेल इसकी हो चुकी है और उसके बेसिस पे उसकी कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ है पोस्टिंग इन अकाउंट्स थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशन में लगाया हुआ है कि हम 10 दिन का रिफंड या रिटर्न लेते हैं, तो अगर आप रिटर्न लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपके कस्टमर ने आपसे कुछ कोई चीज परचेज करी है, अब वो 5 दिन बाद आपके पास दोबारा आया, उसने कोई और चीज परचेज करी, पर आपने उस कस्टमर ने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर कुछ आइटम मैं आपसे लेके गया था, ये मुझे रिटर्न करनी है। तो आपके हमारे पास बिजी में ऑप्शन है कि जब आप उसका सेल वाउचर पास करेंगे, उसी के टाइम पे आप सेल जो रिटर्न आई है वो उसी वाउचर में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें अलग से वाउचर पास करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कस्टमर आपको पे कर देगा। जो भी आपको उस कस्टमर का अमाउंट होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो वो आपको जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे कर देगा। उसके बाद हमें इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है स्कीम का। अब आप देखते हैं कॉस्मेटिक शॉप पे बहुत सारी स्कीम्स लगती हैं कि बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, और बाय दिस कॉम्पैक्ट यू विल गेट अ लिपस्टिक फ्री। तो हम वेरियस टाइप ऑफ स्कीम जो है बिजी में मेंटेन कर सकते हैं। आप ये भी कहते हैं कि पर्टिकुलर अगर आप पर्टिकुलर इस आइटम की इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपको पर्टिकुलर इतना डिस्काउंट आइटम पे मिलेगा। तो अगर आपको ये स्कीम भी मेंटेन करनी है तो ये स्कीम मेंटेन करने का भी बिजी में ऑप्शन है। और आपको ये भी मेंटेन करना है कि आपका मतलब आपकी दिवाली ऑफर चल रही है, ये चलेगी आपकी नवंबर मंथ में, हमें दिसंबर में ये स्कीम नहीं चाहिए। तो हम डेट वाइज भी स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। तो जब आप वाउचर पास करेंगे तो खाली स्कीम वाउचर चेक करेगी, नवंबर का वाउचर है तो ही स्कीम अप्लाई करेगी, एल्स वो किसी भी और मंथ पे स्कीम अप्लाई नहीं करेगी। और ऐसा भी कर रहे हैं आपकी टाइम वाइज बाउंड कर रहे हैं स्कीम को कि ये जो स्कीम चलेगी, ये हैप्पी आवर जो है वो चलेंगे 9 to 12। तो हैप्पी आवर जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइमिंग जो है वो 9 to 12 है। तो जब स्कीम वाउचर पास करेंगे तो टाइम के बेसिस पे वो आपकी सिस्टम डेट पकड़ेगा, उसके बेसिस पे आपकी वो स्कीम अप्लाई हो जाएगी। एल्स सेम डेट पे अगर डिफरेंट टाइमिंग है तो वो स्कीम अप्लाई नहीं होगी। तो हम वेरिय बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो बिजी में मेंटेन कर सकते हैं, डेट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, डिफरेंट आइटम के बेसिस पे, सेम आइटम के बेसिस पे, डिस्काउंट के बेसिस पे। दूसरा ऑप्शन है पैरामीटराइज डिटेल। अब आप देखते हैं एक आइटम है पर्टिकुलर, आप ले लीजिए अगर लिपस्टिक है तो उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और बहुत सारे कलर्स के बाद उसके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं लिपस्टिक के। तो हम ये कैसे उनका हमें स्टॉक मेंटेन करना है, और हर ब्रांड का डिफरेंट प्राइस होता है। तो ये हम पैरामीटर से मेंटेन कर सकते हैं कि जैसे पैरामीटर ऑप्शन जो हमारा है उसमें हम बीसीएम बारकोड भी मेंटेन कर सकते हैं, बीसीएन मेंटेन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर बीसीएन वाइज स्टॉक मेंटेन होगा। हमने क्या करा, हमने एक आइटम ऐड करी, जब आइटम ऐड करेंगे तो ये आपके पास जस्ट ओपनिंग क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर आइटम की। अब आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर जिस आइटम है उस क्वांटिटी की, तो 10 क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स की हैं और डिफरेंट कलर्स की हैं। तो आपके पास पैरामीटराइज विंडो पॉपअप होगी, आइटम में एनेबल कर देंगे। जब पैरामीटराइज विंडो एनेबल होगी उसके बाद आप वहां पे बता देंगे ये पर्टिकुलर ब्रांड, इस ये ब्रांड है, इसका कलर ये है, उस पर्टिकुलर ब्रांड की और उस कलर की कितनी क्वांटिटी है, और उस पर्टिकुलर आइटम का मतलब पैरामीटर का प्राइस क्या है, और वो ऑटोमेटिकली जो है बीसीएन क्रिएट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो जनरेट ना करें, मैनुअली करना है, तो आप मैनुअली भी उसका बीसीएन बता सकते हैं, मतलब बारकोड बता सकते हैं। और ऐसे आप 10 क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मेंटेन कर सकते हैं विद डिफरेंट प्राइजेस एंड विद देयर डिफरेंट बीसीएन। तो ये वेरियस बहुत वास्ट फीचर है जो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग देखनी है बीसीएन वाइज, आपको देखना है कि बारकोड के बेसिस पे आपको स्टॉक देखना है कि हमारा इस पर्टिकुलर बारकोड का, इस पर्टिकुलर ब्रांड का, इस पर्टिकुलर कलर का
कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग, कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी इस मंथ में पड़ी हुई है, ताकि मुझे रीऑर्डर ना करना पड़े। तो आप बीसीएन वाइज स्टॉक देख सकते हैं। बैच वाइज डिटेल, आप चाह रहे हैं कि आप आपकी बहुत सारी आइटम्स हैं। अब आप देखते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक हर जो मटेरियल आता है, जो हर प्रोडक्ट आता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो आप चाहते हैं कि हम हर प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट मेंटेन करना चाहते हैं, कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, ये इसका एमआरपी था, ये इसका पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट है, ये इस दिन पे एक्सपायरी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर बैच वाइज फीचर से ये चीज एनेबल कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर आइटम में बता देंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बैच वाइज इनेबल है। जैसे हम आइटम मास्टर में बैच वाइज इनेबल करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास बैच वाइज की स्टॉक इनेबल होगा। तो आप ये बता देंगे कि इस क्वांटिटी की पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी इस डेट पे एक्सपायरी हो रही है। तो हम मंथ बता देंगे, डेट बता देंगे, ईयर बता देंगे कि कौन से ईयर में वो एक्सपायरी हो रही है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आप डेट मेंटेन करना चाहते हैं तो डेट वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं, मंथ वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो मंथ वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। और ईयर तो होता ही है कि आप ईयर बता देंगे कि कौन से ईयर में वो एक्सपायरी हो रही है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि मेरी कौन कौन सी आइटम है जो वो वेरी सून वो एक्सपायरी होने वाली है, तो मैं उस पे स्कीम लगा दूं, मैं उसको ऑन सेल लगा दूं। तो आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपायरी बैचेस, जो भी आइटम है वो नियर बाय जो एक्सपायरी होने वाली होगी आपकी, वो दिखा देगा कि दिस इज द आइटम, कि ये आइटम है आपकी पर्टिकुलर जो एक्सपायरी होने वाली है। तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप उसकी स्कीम लगा सकते हैं या उसको ऑन सेल कर सकते हैं, ऑफर लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम वाइज डिस्काउंट। अब आप देख सकते हैं कि हम कस्टमर हमारे पास आता है, वो बहुत डिफरेंट वास्ट प्रोडक्ट परचेज करता है, कि मैक का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, रेवलॉन का कर लिया, लैक्मे का कर लिया, मेबलिन का कर लिया, उसने बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड के आइटम परचेज करे हैं। किसी का कॉम्पैक्ट परचेज करा है, किसी की लिपस्टिक परचेज करी है, किसी का आईलाइनर परचेज करा है, किसी का मस्कारा परचेज करा है। तो अब आपको क्या है कि हर आइटम पे, हर ब्रांड पे आपका कंपनी से डिस्काउंट आया है, कि रेवलॉन वो जो है आपको 5% डिस्काउंट दे रही है। तो आप क्या करेंगे, रेवलॉन पे 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। अब लैक्मे जो है वो प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट दे रही है वो दे रही है 10%। अब जो मेबलिन वाला प्रोडक्ट है उस पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो 20% चल रहा है ऑन सेल। तो और जो मैक का प्रोडक्ट है उस पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो 25% चल रहा है। तो अब आपने एक कस्टमर आपके पास आया, उसने ये चार डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज करे। तो अब आप इस सिचुएशन में टक स्टक हो सकते हैं कि आपको एक ही वाउचर में बहुत सारे डिफरेंट डिस्काउंट्स लगाने हैं, डिफरेंट परसेंटेज की लगानी है। तो हमारे पास बिजी में ही ऑप्शन है कि हम आइटम वाइज डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट लेंगे, वो कौन से ब्रांड का है, मैक का है। तो आपसे उसी टाइम पे पूछ लेगा इस पर्टिकुलर आइटम पे मैं कितना परसेंट डिस्काउंट लगाऊं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम पे आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप बता देंगे इस पर्टिकुलर आइटम पे आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है। जब आप सेकंड आइटम आपने ली मेबलिन की, उस पे चल रहा है 10%, तो आप क्या करेंगे, मेबलिन सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर उसने जो आइटम परचेज करी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे दोबारा पॉपअप विंडो में पूछेगा कि इस पर्टिकुलर आइटम पे आपका इस ब्रांड पे कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो आप बता देंगे इस पर्टिकुलर आइटम पे आपका ये डिस्काउंट चल रहा है। तो हमारे पास विजी में ये ऑप्शन है कि आइटम वाइज डिस्काउंट हम मैनेज कर सकते हैं सिंगल वाउचर में। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, अब आपने क्या कर रखा है, आपने स्ट्रक्चर बना रखे हैं कि आपका रेट फिक्स है, आपका वेरी चेंज नहीं होता है रेट। तो आपने क्या कर दिया कि पार्टी के लिए कैश, क्योंकि ज्यादातर कैश बिलिंग होती है, बिलिंग शिपिंग डिटेल आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, कैश पे बिलिंग हो रही है और आप कैश के बेसिस पे आपने आइटम ली, लोड करी आइटम्स, उसका स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया कि ये सारी आइटम्स का ये प्राइस रहेगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पिक कर ले तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली पर पिक कर लेगा। अगर आपने कर रखा है कि आइटम मास्टर में मैंने प्राइस डिफाइन करा हुआ है, आइटम मास्टर के बेसिस पे वो जो भी है वो उसका प्राइस पिक कर ले, तो वो आइटम मास्टर के बेसिस पे उसका प्राइस पिक कर लेगा। तो हमारे पास वेरियस डिफरेंट मोड्स ऑफ प्राइसिंग मोड्स एंड वाउचर्स हैं, जो भी आपको एनेबल करना है वो आप एनेबल कर सकते हैं।
उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन जो करनी पड़ेगी वो वाउचर सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वाउचर सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन हमें सेल्स वाउचर के लिए पर्टिकुलर करनी है, क्योंकि हमें आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट। अब आपका डिस्काउंट किसके बेसिस पे चलता है, प्राइस पे परसेंटेज चलता है। तो आपने ले लिया कि प्राइस पे परसेंटेज चलता है। अगर आपका अमाउंट चलता है कि 100 रुपए की चीज है उसमें 10 रुपए देना है मेरे को, तो आप यहाँ पे परसेंटेज की जगह अमाउंट ले सकते हैं, सिंपल डिस्काउंट अमाउंट। अगर आपकी परसेंटेज चल रही है कि 100 रुपए पे आपका 10% है, तो आप क्या ले लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्राइस। और जो आप स्ट्रक्चर लेंगे उसके बेसिस पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी या अमाउंट कैलकुलेट होके जो नेट अमाउंट है आपको वो दिखा देगा। दूसरा ऑप्शन जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। अब अगर ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि आप हर पार्टी का डेटा तो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं दिन के, तो आपको क्या मेंटेन करना है, उनका नाम मेंटेन करना है, उनका मोबाइल नंबर मेंटेन करना है, उनका एड्रेस मेंटेन करना है, दैट्स इट। और कोई तो जरूरत नहीं है आपको मेंटेन करने की डेटाबेस। तो आपने क्या किया कि पार्टी तो ले ली आपने कैश, पर आपने बिलिंग शिपिंग डिटेल मेंटेन कर ली। बिलिंग शिपिंग डिटेल में आपने बता दिया कि ये पार्टी का नाम है, ये यहाँ, ये उसकी लोकेशन है, यहाँ से ये पर्सन आया है, और इसका ये मोबाइल नंबर है। ये तीनों चीजें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपको एसएमएस भेजना है या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है उस पर्सन की, कि जैसे ही आप वाउचर सेव करें तो इसके व्हाट्सएप पे एक एसएमएस चला जाए कि आपने अंकिता, एक नाम है पर्टिकुलर पर्सन का, हे अंकिता, आप थैंक यू फॉर परचेजिंग, और आपने जो परचेज करा आपका ये कांटेक्ट नंबर है, और इतने की आपकी परचेज हुई है, मतलब जो आपने परचेज करी है ये इतने प्राइसिंग की है, थैंक यू फॉर परचेजिंग, जो आपको वार्म वेलकम करके जो एसएमएस भेजना है तो आप उसको आप भेज सकते हैं। तो ऑटो राउंड ऑफ, अगर आपका 8.89 का है और आपका चल रहा है कि आपको ऑटो राउंड ऑफ करना है बिल को, मतलब वो लमसम अमाउंट हो जाए, ऑटो राउंड ऑफ हो जाए। अगर आपका 0.50 है तो वो बिलो 1 कर दे, अगर आपका अबव 0.50 है तो ऑटो राउंड ऑफ में वो आपका अबव 1 कर दे। अ, तो बिलो 1 और अबव 1, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऑटो राउंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जाए बिल में, तो आप ये फीचर भी इनेबल कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि जैसे ही आप वाउचर सेव करें, पीओएस का सेल्स का वाउचर, वैसे ही उसका प्रिंट आउट निकल जाए, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पीओएस बिलिंग में कस्टमर हमारे क्यू में खड़े हैं और हम इतना वेट करें कि हम दोबारा से मॉडिफाई करें वाउचर को और उसका प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे। तो हमारे पास फास्ट बिलिंग का ऑप्शन है कि आपने पीओएस बिलिंग एनेबल करी, जैसे ही वाउचर सेव करा वो आपको ऑप्शन पॉपअप दे देगा कि डू यू वांट टू प्रिंट द वाउचर। उसी टाइम में आपने इमीडिएटली उसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को वाउचर दे दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग। जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे वैसे ही इमीडिएटली आपको वो प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। सेंड एसएमएस आफ्टर सेविंग, अगर आप चाह रहे हैं कि एसएमएस भेजना है आपको, नॉर्मल एसएमएस आपको भेजना है एज अ वार्म वेलकम कि आपने थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर दिस आइटम, तो आप चाहते हैं कि एसएमएस चला जाए आफ्टर सेविंग द वाउचर, तो आप वो भी कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर कर सकते हैं थ्रू एपीआई। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फास्ट फिलिंग करनी है, पीओएस, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, तो आप पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस पे ये चीजें बता सकते हैं। उसके बाद पीओएस की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी। उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसका डेट बता देंगे, सेल टाइप बता देंगे। अब आपके सेटलमेंट मोड है तो ये सेटलमेंट मोड बता देंगे कि आपका कौन से मोड में सेटलमेंट हो रही है, कैश मोड में हो रही है पेमेंट, बैंक के थ्रू हो रही है या यूपीआई के थ्रू होती है, ये सेटलमेंट हम बता देंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम मास्टर क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम मास्टर क्रिएट करेंगे, आपका ओपनिंग स्टॉक है तो आप यहाँ पे बता देंगे कि इस पर्टिकुलर आइटम का जो ओपनिंग स्टॉक है उसका बैच नंबर ये है, इसकी ये क्वांटिटी है, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड दिस इज द एक्सपायरी डेट। तो ये चीज आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर डिटेल मेंटेन करेंगे कि ये आपका बारकोड नंबर है,
ये इस ब्रांड का आइटम है, ये इसका कलर है, ये इसका टाइप है, इसका ये सेल प्राइस है और इतनी क्वांटिटी है। तो पैरामीटराइज डिटेल हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिमम, रीऑर्डर और मैक्सिमम बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी बता सकते हैं कि मिनिमम लेवल क्वांटिटी हमें कितनी मेंटेन करनी है, रीऑर्डर कितनी मेंटेन करनी है, मैक्सिमम लेवल कितनी मेंटेन करनी है। हम क्वांटिटी के बेसिस पे क्रिटिकल लेवल बता सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन मेंटेन कर सकते हैं बीजी में बाय क्रिएटिंग सेल्समैन ऑन इन मास्टर्स। उसके बाद क्या होगा कि हम स्कीम मैनेज कर सकते हैं बीजी में, कि क्या है आपका पर्टिकुलर बाय, अगर आपने कॉम्पैक्ट परचेज करा है उसके साथ आपकी लिपस्टिक फ्री मिल रही है, तो आप ये स्कीम मेंटेन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट पे आपकी ये स्कीम चल रही है कि आपने कॉम्पैक्ट परचेज करा, उसके साथ आपकी लिपस्टिक फ्री मिल रही है। तो लिपस्टिक का प्राइस पे कुछ अप्लाई नहीं होगा और आपका कॉम्पैक्ट के साथ आपकी लिपस्टिक फ्री मिल जाएगी। तो आप ऐसे स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन पास करेंगे। सबसे पहले परचेज वाउचर ऐड करेंगे कि आपने कौन से वेंडर से वो जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो खरीदे हैं। तो पहले सारे आपने बीसीएन मेंटेन कर लिए, उसके बैचेज मेंटेन कर लिए, एक्सपायरी डेट मेंटेन कर ली, स्टॉक मेंटेन कर लिया पैरामीटर वाइज, बैच वाइज। उसके बेसिस पे आपने क्या करा कि आप परचेजेस ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, परचेज के बाद हम पैरामीटर मेंटेन कर देंगे कि इस ब्रांड का है, इस कलर का है, उसका ये टाइप है, उसका सेल प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है और बारकोड नंबर कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन पास कर देंगे कि ये आपका सेल वाउचर है, आप आपके उसमें स्कीम भी लग गई और उसके बाद आपकी डिफरेंट आइटम भी लग गई, ये आपकी डिफरेंट आइटम्स हैं। तो आप सेल ट्रांजेक्शन कर देंगे थ्रू बीसीएन। उसके बाद हम सेटलमेंट बता देंगे कि कौन से मोड पे आपकी सेटलमेंट हो रही है, तो प्राइस बता देंगे। उसके बाद अगर आपको होल्ड वाउचर करना है तो उसकी शॉर्टकट की आप नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल H होती है शॉर्टकट की। जैसे ही आप होल्ड कर देंगे वाउचर को तो उसको आप अनहोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स कौन कौन सी देख सकते हैं हम, सेल्स रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स, सेल्स सेटलमेंट समरी एंड डिटेल्स, कमीशन कैलकुलेशन, स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, पैरामीटर वाइज बीजीएन वाइज स्टॉक हम देख सकते हैं बीजी में, एक्सपायरी बैचेज वाइज स्टॉक देख सकते हैं बीजी में, स्कीम रिपोर्ट्स हम बीजी में देख सकते हैं। अनमूव्ड आइटम्स, आपकी कौन सी ऐसी आइटम्स है जो मूव ही नहीं हुई, जो पर्टिकुलर आइटम्स की सेल ही नहीं हुई है, तो अनमूव्ड आइटम्स भी हम बीजी में देख सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं कि B2C की कितनी सेल हुई है GS1 में, ये हम देख सकते हैं। जीएसटी समरी देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अगर हमें देखनी है तो हम वो देख सकते हैं। सेल्स एंड परचेज एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बेसिस पे, पाई चार्ट के बेसिस पे हम सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आप वाउचर ऐड कर सकते हैं और 100 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो हम मोबाइल ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स हमारे पास ऑप्शन है, आप टॉप देख सकते हैं, जीएसटी समरी आ रही है। जीएसटी समरी में हम देख सकते हैं कि ये हमारी जीएसटी समरी है, इसका ये इनपुट है, इसका ये आउटपुट है, उसने उतना उसका टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है। GST1 देख सकते हैं जो सेल की रिटर्न होती है, B2C की कितनी आपने सेल करी है वो आपका पर्टिकुलर उस मंथ में दिखा देगा, इतनी B2C की आपकी सेल हुई है। मोबाइल ऐप में हम वाउचर ऐड कर सकते हैं, कोटेशन का, इनवॉइस का, ऑर्डर का, रिसिप्ट का, ये वेरियस वाउचर हम मोबाइल ऐप के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। और 100 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मोबाइल ऐप के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। टॉप रिपोर्ट्स, इनएक्टिव आइटम्स, इनएक्टिव कस्टमर कौन से हैं हमारे, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स जो मेरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप बिजी के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू वो बिजी में देख सकते हैं। आइए अब प्रैक्टिकल डेमो पे मूव करते हैं। ये हमारी कंपनी है, इसको मैंने लॉग इन करा है। सबसे पहला हम क्या करेंगे इसमें, अब सबसे पहले हमने फीचर्स इनेबल करें, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फीचर्स मैंने इनेबल करें। सबसे पहला फीचर्स हमें अकाउंट्स में इनेबल करें, तो हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स। जो यहाँ पे मैंने फीचर्स इनेबल करे हैं वो टारगेट इनेबल करा हुआ है, पोस्टिंग इन अकाउंट्स थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, जो मैं आपके इनको मतलब बता चुकी हूँ, सेल्समैन मेंटेन करा हुआ है। कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वाउचर लेवल पे हमें मेंटेन करना है कि इस वाउचर पे, मतलब पर्टिकुलर इस कस्टमर को किस सेल्समैन ने सेल करी है, तो वाउचर लेवल पे आपने बता दिया
कि वाउचर लेवल पे इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने सेल करी है, सेल वाउचर पे खाली हमें चाहिए सेल्समैन, मैंने टिक कर दिया। आपको यहीं पे हमने बता दिया कि हर सेल्समैन की 10% कमीशन है और हर हर वाउचर में आपसे कमीशन पूछे उसकी, तो आपने ओके कर दिया। उसके बाद जो आपने मेंटेन करा है वो बैंक इंस्ट्रूमेंट करा है। तो ये सारे फीचर्स हम अकाउंट्स में एनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री पे जाएंगे, नीचे ही टैब आता है, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो फीचर एनेबल हमने करा हुआ है, स्कीम एनेबल करी हुई है। उसके बाद हमने पैरामीटर मेंटेन करा हुआ है। पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में हमने ब्रांड मेंटेन करा हुआ है, उसका कलर मेंटेन करा हुआ है, टाइप मेंटेन करा हुआ है और बीसीएन मेंटेन करा हुआ है, बारकोड नंबर, उसका सेल प्राइस क्या है वो मेंटेन करा हुआ है। उसके बाद हमने बैच वाइज डिटेल मेंटेन करी है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगी तो हमने क्या करा हुआ है, जो एक्सपायरी डेट करी हुई है मंथ और ईयर फॉर्मेट के बेसिस पे करी हुई है उसकी। उसके बाद हमने जो फीचर एनेबल करा हुआ है वो आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करा हुआ है, सिंपल डिस्काउंट। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बहुत सारे डिस्काउंट है, परसेंटेज भी लग रही है, एक ही आइटम पे 3 डिस्काउंट लग रहे हैं, परसेंटेज भी लग रही है, अमाउंट भी लग रहा है, तो आप कंपाउंड डिस्काउंट भी यूज कर सकते हैं। और प्राइसिंग मोड आप बता सकते हैं यहाँ पे कि आपका आइटम मास्टर से पिक कर ले। जो भी आपको प्राइसिंग मोड बताना है यहाँ पे आप वो कन्फिगर कर सकते हैं कि आपका कौन से मास्टर से वो आपका पिक करे, डिफॉल्ट आइटम मास्टर से करे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है इन्वेंट्री में। इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। ये करने के बाद हमें वाउचर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। इसके लिए हमें जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सेल्स के बाद एंटर करेंगे, उसकी सीरीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम वाइज डिस्काउंट एनेबल करना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट स्ट्रक्चर आ रहे हैं। जो भी आपको लेना है, परसेंटेज लेना है, ऑल्टरनेट यूनिट पे लेना है, मेन क्वांटिटी पे लेना है, आपको एब्सोल्यूट अमाउंट के लेना है, जैसे आपका परसेंटेज चल रहा है प्राइस में, तो आपने यहाँ पे ले लिया सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। इसके बाद आपने क्या करा, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स एनेबल करी कि जब आप पार्टी सेलेक्ट करें खाली कैश ऑन बैंक, तभी बिलिंग शिपिंग डिटेल आपकी एनेबल हो। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि की फील्ड आपके पार्टी नेम है और खाली कैश लेने पे ही आपकी बिलिंग शिपिंग डिटेल की विंडो ओपन हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ एनेबल कर देंगे। ये ऑप्शन आ गया आपका राउंड ऑफ का। ऑटोमेटिक चाहिए, ऑलवेज लोअर ऑलवेज अपर, उसके बेसिस पे हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि राउंड ऑफ अपर में हमें प्लस लेना है, माइनस लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका वाउचर सेव हो जाए उसके बाद आपका जो प्रिंट है वो सेल्स इनवॉइस आपका प्रिंट हो जाए, तो हम इसको येस कर देंगे। और यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि 3 इंच का फॉर्मेट है वो आपका प्रिंट हो गया है, उसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जैसे वाउचर सेव हो जाए उसके बाद उसका एसएमएस चला जाए वार्म वेलकम की तरह, तो आप इसको इनेबल कर देंगे, प्रिंट सेंड एसएमएस आफ्टर सेविंग। अब आपको क्या करना है, पीओएस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप ये ऑप्शन एनेबल करेंगे, एडवांस पीओएस डेटा एंट्री। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स बता देंगे कि डेट आपको सेमी वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल चाहिए, फिक्स चाहिए। मैं आपको इस तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ। फिक्स में क्या होता है कि आपका फिक्स होता है, आप उसको फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल में क्या होता है, आपका कर्सर वहां पर जाएगा और आपको जो भी चीज डिफाइन करनी है वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल में क्या होता है कि आपका कर्सर वहां पे नहीं जाएगा। अगर आप लेना के लिए जाना चाहते हैं तो आप माउस के थ्रू या कीपैड के थ्रू वहां पे कर्सर लेके जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंस होता है तीनों में। आप सेल टाइप बता देंगे, पार्टी बता देंगे कौन सी पार्टी है, सेल्समैन रिक्वायर्ड बता दिया हमने, वेरिएबल बता दिया। प्रायोरिटी हमारी क्या हो, सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी बारकोड रीडिंग की करे, सबसे पहले करे बारकोड हमने, सेकंड है आइटम, दूसरा है तीसरा है बैच। उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया कि सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। हमने यहाँ पे ले लिया कैश के है कैप्शन उसका ये है, दूसरा है बैंक, तीसरा है आपका यूपीआई, यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो आपने यहाँ पे ओके कर दिया। ये थी वाउचर सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे भी सेव कर देंगे। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें आइटम क्रिएशन करनी होती है। आइटम क्रिएशन के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स, मास्टर्स के बाद आइटम। तो एक आइटम में मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ आपको।
ये एक आइटम है बाथ जेल्स, इसकी ओपनिंग जो क्वांटिटी है 2 है। अब हम F2 करेंगे। यहाँ पे हमने बैच वाइज, BCN वाइज, पैरामीटर वाइज और बैच वाइज एनेबल करा हुआ है। हम F2 करेंगे तो हम यहाँ पे बता देंगे इसका बैच नंबर ये है, इतनी एक क्वांटिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये है, उसकी एक्सपायरी ये है। तो ये हम मेंटेन कर सकते हैं बैच वाइज। जैसे इसको सेव करेंगे, पैरामीटराइज डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद हम उसका बारकोड बता देंगे कि ये बारकोड नंबर है इसका, इस ब्रांड की ये आइटम है, उसका कलर कौन सा है, जेल क्या टाइप है उसका, जेल है या क्या है वो बता देंगे, उसका पर्टिकुलर सेल प्राइस क्या है पर्टिकुलर दिस आइटम का वो बता देंगे, और कितनी क्वांटिटी है इस स्टॉक की तो हम यहाँ पे ये बता देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्रिटिकल लेवल को यस करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बता सकते हैं मिनिमम लेवल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, रीऑर्डर कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, कि मैक्सिमम 100 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं होनी चाहिए, एल्स वो वार्निंग दे देगा इन 100 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप परचेज करेंगे। मिनिमम होगा 50, जब आप उसको सेल करेंगे और 50 से कम होगी तो आपको वार्निंग दे देगा कि इसका मिनिमम लेवल कम हो रहा है। रीऑर्डर पे आपको पॉपअप दे देगा कि अब आपको ये रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये थी मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्समैन क्रिएट करना है। सेल्समैन क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स, मास्टर्स में सेल्समैन। एक मैं मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप सेल्समैन का हम नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम उसका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बता देंगे कि कौन से सेल्समैन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। जो आपको एड्रेस इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करनी है तो आप वो भी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन मेंटेन कर लेंगे। सेल्समैन मेंटेन करने के बाद आपको स्कीम मेंटेन करनी है। इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स, मास्टर्स में स्कीम। स्कीम में देखेंगे मैंने एक ऑलरेडी बनाई है कि बाय कॉम्पैक्ट गेट लिपस्टिक फ्री। अब मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप कॉम्पैक्ट खरीदेंगे तो आपको उसके साथ लिपस्टिक फ्री मिलेगी। अब मैंने क्या बता दिया कि इसका टाइम चल रहा है 1/4 से 31/3, पूरे साल में ये स्कीम चल रही है। अगर आपको टाइम बताना है तो यहाँ पे यस करेंगे तो इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी एक्टिव हो जाएगा, वो बता सकते हैं। सेल वाउचर पे स्कीम एप्लीकेबल है तो हम बता देंगे सेल वाउचर पे ये स्कीम चल रही है, तो हमने सेल वाउचर पे टिक कर दिया। सारी सीरीज पे चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल आइटम, क्लब डाउन और वाउचर लेवल, पूरे वाउचर पे एक ही स्कीम लग रही है तो वाउचर लेवल पे बता देंगे, वो बिल अमाउंट पे स्कीम चल जाएगी। क्लब डाउन पे मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी और अमाउंट के बेसिस पे अगर आपकी चल रही है, क्लब कर देगा वो उसको, तो उसके बेसिस पे स्कीम चलेगी। इंडिविजुअल आइटम्स पे स्कीम चल रही है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल आइटम। यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे आप स्कीम सेट करते हैं, डिस्काउंट के बेसिस पे आप स्कीम सेट कर सकते हैं। अगर आपकी सेम आइटम है उस पे आपका डिस्काउंट चल रहा है या फ्री आइटम चल रही है उस पे आप स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी डिफरेंट आइटम फ्री मिल रही है उस पे डिस्काउंट है तो आप वो भी मेंटेन कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पे करा है कि अगर आप कॉम्पैक्ट खरीदेंगे, उसकी एक क्वांटिटी खरीदेंगे तो उसके साथ आपकी लिपस्टिक फ्री मिलेगी। अब लिपस्टिक फ्री नहीं मिल रही है पर उसका प्राइस जो है वो 200 था पर वो 100 हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि 100 तो यहाँ पे आप बता देंगे कि 100 यहाँ पे इसका प्राइस है। तो अब जब वाउचर पास करेंगे सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैच होंगी तो उसका लिपस्टिक का प्राइस पकड़ेगा 100। तो इस तरीके से आपको स्कीम ऐड करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, परचेज एंट्री करेंगे। परचेज के वाउचर में आपको मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ, मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ एक बार जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। ये है एक वाउचर मेरा, इस पे लोकल 18% टैक्स लग रहा है। ये वेंडर सी से मैंने आइटम खरीदी है। आईलाइनर मैंने खरीदा है 2 क्वांटिटी। इसका बैच नंबर ये है, इतनी क्वांटिटी है, ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये एक्सपायरी है उसकी, ये मेंटेन कर दिया। उसके बाद हमने बता दिया जो ब्रांड है मेबलिन है, उसका कलर है ब्लैक, टाइप क्या है लिक्विड है, उसका सेल प्राइस क्या है 200, क्वांटिटी कितनी है, बारकोड क्या है उसका। दूसरा ब्रांड बता दिए, जो दूसरी क्वांटिटी है वो कौन से ब्रांड की है, कलर क्या है, टाइप क्या है, सेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है और बारकोड क्या है। तो इस तरीके से आप वाउचर पास कर सकते हैं, सेल वाउचर पास कर लेंगे कि कौन कौन से वेंडर से आपने आइटम परचेज करनी है। तो ऐसे जो भी आपकी परचेजेस होंगी वो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप सेल वाउचर एंटर करेंगे। सेल वाउचर आपने ऐड करा, यहाँ पे आपने ले लिया लोकल 18%। मुकेश इसका सेल्समैन है। यहाँ पे हमने बारकोड नंबर मेंशन कर दिया।
बारकोड नंबर है, ये मेरा BCN नंबर ये है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी ऑटोमेटिकली ये जो आइटम है वो रीड कर लेगा कि ये बाद सेल वाली BCN है, इसका क्वांटिटी ये है। अब कौन सा जो है इसका ड्रॉप डाउन में जो भी बैच नंबर होगा वो दिखा देगा कि एक्सपायरी इसकी 24 की आ रही है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो BCN की ऑटोमेटिकली जो हमने परचेज में डिटेल मेंशन करी है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पिक होके आ जाएगी। यहाँ पे हम बता देंगे, अगर आपका लेट सपोज 5% डिस्काउंट चल रहा है तो आपने यहाँ पे बता दिया, तो ये 950 आपका प्राइस हो गया। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे, F2 करेंगे, अभी आपसे मोड पूछेगा कौन से मोड में आपका कस्टमर है जो पेमेंट कर रहा है। तो अगर पेमेंट कर रहा है तो आपका कैश मोड पे कर रहा है या UPI मोड पे कर रहा है। लेट सपोज वो UPI मोड पे कर रहा है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि इतने जो UPI पेमेंट है। अगर आपकी लमसम चाह रहे हैं कि लमसम है आपकी लेट सपोज 1000 आपकी ये है और 121 आपकी इतनी है, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बिलिंग शिपिंग डिटेल होगी, ये पार्टी क्या है आपकी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि आपका कोई अगर आपका टाइप ऑफ डीलर होगा तो आप यहाँ पे बता देंगे। पार्टी का नाम है अंकिता, एड्रेस है रोहिणी, स्टेट दिल्ली, उनका मोबाइल नंबर है, आपने हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। अब देखिए सेल्समैन का परसेंटेज आ गया कि इस पर्टिकुलर मुकेश सेल्समैन की परसेंटेज जो चल रही है वो 10% है, तो इस वाउचर पे जो कमीशन अमाउंट बना है वो 95 बना है। तो आप उस वाउचर को सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप वाउचर को सेव करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन करी थी प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग वाउचर, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर आ रहा है, इसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है। अब आप जब भी अपना जैसे भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम होगा, जब भी इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना भी अमाउंट होगा 1121 जितना भी होगा ऑटोमेटिकली वहाँ ऐप में आ जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस। यहाँ पे हमने QR कोड से एक ये बनाया फॉर्मेट, यह हेडर लिया है। यहाँ पे हेडर लेने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये बताया कि हमारी यूपीआई ये है। उसके बाद हमने बता दिया अमाउंट ग्रैंड टोटल। उसके बाद हमने बता दिया मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए कि 1 इसका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे हम QR कोड की कि ये इसका URL है यूपीआई का, उसके बाद अमाउंट ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली पकड़ ले और मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उसका 1। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने क्या करा कि हम 3 इंच से करते हैं प्रिंट, तो हमने यहाँ पे गए, फुटर पे गए, हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया, QR कोड की फील्ड लिए और उसका साइज क्या है कि हमें 1 साइज रखना है, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस तरीके से हम BCN वाइज एंट्री कर सकते हैं स्टॉक की। जब आप वो एंट्री कर देंगे, आप जैसे आपका एक वाउचर है, आपने एक वाउचर डाला या आपने आइटम डाल दिए। अब आप चाह रहे हैं कि आपका एक ये कस्टमर कुछ और सामान खरीदने चला गया आपकी शॉप से, पर दूसरा कस्टमर जो है वो आपका क्यू में वेट कर रहा है बिलिंग के लिए। तो अब आपने क्या करा, ये वाउचर को होल्ड पे रख दिया कि ये आइटम तो डल चुकी हैं, वो और आइटम ऐड लेने गया है, तो हम इस वाउचर में ऐड कर देंगे वापसी से। मैं उसको हटाना नहीं चाहता, मैं दूसरे उसकी कस्टमर की बिलिंग करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे करेंगे Ctrl+H। जैसे ही Ctrl+H करेंगे तो यहाँ पे आएगा एंटर वाउचर आइडेंटिटी फॉर होल्डिंग वाउचर, मींस ऐसी कोई भी आइडेंटिटी बताइए जिससे होल्डिंग वाउचर को आप डिफाइन करें तो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि आइडेंटिटी है इसकी वाउचर नंबर 7 है, मैंने ओके कर दिया। वो अब आपका होल्ड पे चला गया। अब मैंने क्या करा कि दूसरा वाउचर पास कर दिया, दूसरा वाउचर वहां पे पास कर दिया, इसको सेव कर दिया, दूसरे वाउचर को सेव कर दिया मैंने। अब मैं चाह रही हूँ कि वो दोबारा से मेरे को अनहोल्ड करना है, तो मैं करूंगी Ctrl+H, यहाँ पे आएगा रीस्टोर वाउचर,
तो रिस्टोर वाउचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका ड्रॉप डाउन होगा यहाँ पे दिखा देगा कि आपके ये होल्ड वाउचर्स हैं। जितने भी होल्ड वाउचर होंगे ये सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा देगा विद देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपने यहाँ पे 7 करा, ओके करा, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वाउचर की सारी डिटेल्स आ गई है। अब वो कोई कस्टमर जो है एक्स्ट्रा आइटम खरीदने गया है तो यहाँ पे वो आइटम आप ऐड कर देंगे कि ये आइटम है जो हम वो खरीद के आया है, यहाँ से एक्स्ट्रा आइटम ऐड करके आप उसका वाउचर को सेव कर देंगे। तो ये था होल्ड वाउचर का प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है कि आपको फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करना है। अगर आपका बुक स्टॉक है, मतलब बिजी का जो स्टॉक है और फिजिकल स्टॉक है उसको मैच करना है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास फिजिकल स्टॉक वाउचर का एक ऑप्शन होता है। अब आप क्या करेंगे, फिजिकल स्टॉक वाउचर पे गए, आपने ये सारी आइटम्स जो है यहाँ पे लोड आइटम्स कर ली हैं। लोड आइटम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो जितने भी लोड आइटम्स होंगी वो सारी लोड हो जाएंगी। ये सारी लोड हो जाएंगी। अब आप देखेंगे आपका बुक स्टॉक जो आ रहा है इसका आ रहा है 1 क्वांटिटी है, पर एक्चुअल में मेरे पास है इसकी 3 क्वांटिटी। और तो आप बता देंगे ये इसका ये टाइप है क्या है, ये सारी चीजें बता देंगे, सेव कर देंगे। मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 क्वांटिटी करना है कि इस आइटम की 3 हो रही है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि इस आइटम की 2 है, इस आइटम की 1 है। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि ये आपका ये बारकोड है, एज पर फिजिकल आपका ये है और कितनी क्वांटिटी है। तो ये सारी पैरामीटर के बेसिस पे हम सेव कर देंगे। अब हमने सेव कर दिया, तो ऐसे हम उसका स्टॉक जनरल वाउचर ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा कि आइटम जो जनरेट हुई है ज़्यादा हुई है, ये हुई है, जो कम हुई है कंज्यूम हुई है वो कम हुई है। अब हम रिपोर्टिंग पार्ट पे आएंगे। रिपोर्टिंग पार्ट में सबसे पहले रिपोर्ट जो हम चेक कर सकते हैं वो है सेल रजिस्टर। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, अकाउंट रजिस्टर स्टैंडर्ड, सेल रजिस्टर, ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टी। यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलर 1 सेल्समैन वाइज देखनी है, ऑल सेल्समैन वाइज देखनी है। उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पर्टिकुलर ये आइटम है, के सेल हुई है, इतना आइटम है, उतनी आपकी सेल हुई है। उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको देखने की डे बुक, आपको डे बुक देखनी है कि डे बुक में आपका क्या क्या ऐसी डे बुक आपकी कैश बैलेंसेस की सेव हुई है। तो आप डे बुक देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी ये डे बुक रेट हुई है, ये आपका परचेजेस थी, ये आपकी सेल थी, उसके बेसिस पे आपका सब कुछ दिखा देगा। ये आपकी परचेज थी, ये सारी आपकी सेल थी, उसके बेसिस पे आपकी टोटल सेल कितनी हुई है और आपकी टोटल परचेज कितनी हुई है। सेटलमेंट समरी आप देख सकते हैं, अकाउंट समरी में जाके सेटलमेंट समरी सीरीज वाइज, अब सेल ले लिया आपने, डेट रेंज बता दी। यहाँ पे देखेंगे अगर मेन सीरीज के टोटल जो बिल हैं वो 7 हैं, टोटल बिल अमाउंट इतना है, इसमें से कैश अमाउंट जो कैश हमारे पास रिसीव हुआ है वो इतना हुआ है, जो मतलब CC2 मतलब यूपीआई से पेमेंट हुई है वो इतने की पेमेंट हुई है। तो आप सेटलमेंट समरी भी चेक कर सकते हैं। सेटलमेंट समरी के बाद आप कमीशन कैलकुलेशन देख सकते हैं। कमीशन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास रिपोर्ट आती है कमीशन कैलकुलेशन, सेल के लिए देखनी है, ऑल सेल्समैन के लिए देखनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे दिखा देगा कि पर्टिकुलर ये सेल्समैन है जैना, उसका बिल अमाउंट इतना था और आपका सेल इतनी हुई है, उसके बेसिस पे उसकी कमीशन इतनी बनी। तो ये सेल्समैन वाइज आपका बिल अमाउंट दिखा देगा, उसके बेसिस पे सेल कितनी हुई है वो दिखा देगा, और उसके बेसिस पे उसकी कमीशन कितनी बनी है वो दिखा देगा। फिर उसकी आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम्स। ये आप देख सकते हैं कि ये बात जेल्स की इतनी क्लोजिंग क्वांटिटी अभी अवेलेबल है। आपको देखना है BCN वाइज पैरामीटर वाइज स्टॉक, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैच वाइज पीरियड पैरामीटर स्टॉक, यहाँ पे आता है पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक देखना है। तो यहाँ पे जाएंगे बैलेंसेज ओनली, तो ये दिखा देगा बाथ जेल्स की ब्रांड, कलर, टाइप की इतनी क्वांटिटी, प्राइस आपका अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि आप BCN वाइज देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे, बैलेंसेज ओनली, ऑल आइटम। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो देखिए BCN वाइज जो आपका बारकोड नंबर है उसके बेसिस पे जितनी क्वांटिटी है क्लोजिंग क्वांटिटी वो आपके रिपोर्ट में आ गया है कि ये सारे आपके ब्रांड हैं, ये आपकी कलर है, ये आपका टाइप है, उसका सेल प्राइस इतनी है और इतनी क्वांटिटी उसकी अवेलेबल है। तो वो आपको स्टॉक के बेसिस पे
दिखा देगा। तो पैरामीटर वाइज रिसेंट स्टॉक आप देख सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि एक्सपायरी देखनी है मुझे, जो कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो एक्सपायरी होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट आती है एक्सपायरी बैचेस। यहाँ पे आप जाएंगे, ऑल आइटम्स का देखना है मेरे को, एंट्री वाइज डिटेल देखनी है, टिल डेट अभी तक की डेट का देखना है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे जो रिपोर्ट होगी यहाँ पे जो भी एक्सपायरी होने वाली होगी आइटम यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया लेट सपोज 25, जो भी आइटम एक्सपायरी होने वाली होगी वो दिखा देगा। एक्सपायरी डेट आपकी अप्रैल 25 है, अप्रैल 24 है, ये सारी आइटम है जो आपकी एक्सपायरी होने वाली है। तो आप इसको जल्दी से ऑन सेल लगा दीजिए या ऑफर प्राइस पे लगा लीजिए। अगर आप देख रहे हैं करंट मरा मंथ इसका है 23, तो इस डेट पे कोई आपका नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2024, तो जो भी 2024 से रिलेटेड जो भी आपकी आइटम्स होंगी जो एक्सपायरी होने वाली होंगी नियर बाय, वो दिखा देगा अप्रैल मंथ में। ये सारी आइटम है जो आपकी एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी बैचेस के हिसाब से दिखा देगा रिपोर्ट। उसके बेसिस पे आप उसको आइटम्स को ऑन सेल पे या ऑफर पे लगा सकते हैं। स्कीम की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले में आता है स्कीम रिपोर्ट्स, स्कीम यूज्ड इन वाउचर्स, बाय कॉम्पैक्ट गेट लिपस्टिक फ्री, ऑल डिटेल बता दिया। यहाँ पे बता दिया कि 2 वाउचर है और 5 नंबर वाउचर है, इस पे आपका लिपस्टिक की मैक की इतनी इतनी सेल हुई है, और ये नेट अमाउंट लिस्ट प्राइस अमाउंट आपका स्कीम के बेसिस पे आपका वाउचर दिखा देगा यहाँ पे। तो आप स्कीम की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब आपकी ऐसी कोई वाउचर आइटम है जो मूव ही नहीं हुई है इतने टाइम से, उसकी सेल आउट ही नहीं हुई है, ताकि आप उसको आउट ऑफ द स्टॉक कर दें। तो आप यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री समरी, यहाँ पे आता है अनमूव्ड आइटम्स, ऑल आइटम्स। यहाँ पे आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सारी आइटम जो है वो आपको दिखा देगा कि आपकी ये सारी आइटम जो है अनमूव्ड है, जिनका स्टॉक नहीं, जो स्टॉक रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ वो आपका बिक नहीं रहा है, तो ये आप उसको सेल आउट कर दीजिए अगर उनका स्टॉक अवेलेबल है तो आप अनमूव्ड आइटम जो मूव नहीं हुए बहुत टाइम से उसकी भी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद होती है जीएसटी रिपोर्ट्स। अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट्स देखनी है तो जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी समरी हो गया। जीएसटी समरी में अगर हम देखेंगे तो इनपुट टैक्स मतलब हमारी परचेजेस कितनी हुई है, आउटपुट टैक्स हमारी सेल्स कितनी हुई है, तो सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। उसके हिसाब से दिखा देगा कि आपका टैक्स पेबल बन रहा है या रिफंडेबल बन रहा है। अब आपको क्या करना है कि आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं सेल B2C की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटीआर 1 देख सकते हैं। तो B2C की जितनी भी सेल होंगी वहां पे सारे दिखा देगा। टोटल टैक्सेबल इतना है, इतना टैक्स बन रहा है, उतना HCGST है, इतना SGST है। उसके बाद हम MIS रिपोर्ट देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट में कैश फ्लो के बेसिस पे हमें देखनी है, तो कैश फ्लो के बेसिस पे वो दिखा देगा कि जून मंथ में इतनी आपकी इनफ्लो था, इतना नेट फ्लो था, बैलेंस इतना है। फंड फ्लो के बेसिस पे देखनी है तो अप्रैल में जून के हिसाब से वो दिखा देगा फंड फ्लो में इतनी आपकी है। रेशियो एनालिसिस आपको करना है जून मंथ का, तो आप रेशो पे देख सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस इसका इतना है, इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं इक्विटी वगैरह के बेसिस पे। टारगेट वेरिएंस, अगर हमने कोई टारगेट बनाया हुआ है, अगर हमने यहाँ पे कोई टारगेट बनाया हुआ है पर्टिकुलर सेल्समैन का, जैसे जैना का हमने टारगेट बनाया हुआ है कि ये अमाउंट मंथ पे 1 लाख की सेल करेगा मंथली बेसिस पे। यहाँ पे हमने क्या करा है, मंथली बेसिस पे ये मंथ की 1 लाख सेल करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया, उसका टारगेट बता दिया 1 लाख। हमने यहाँ पे टारगेट बता दिया। अब हम उसकी रिपोर्ट तब देखेंगे, जैना की हमने देखी, ऑल ब्रोकर्स की देखी, ऑल पार्टी ग्रुप की देखी जून मंथ में, तो यहाँ पे दिखा देगा जैना की कैश इन हैंड पार्टी ग्रुप है, उसका टारगेट था 1 लाख, बस सेल हुई है 1856 की, तो वेरिएंट जो आ रहा है उतना आ रहा है, मतलब उसको इतने की और सेल करनी है अभी। तो आप जो आपका टारगेट है उसके बेसिस पे आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, MIS रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, ग्राफ के बेसिस पे सेल्स एनालिसिस देखने हैं कि पाई चार्ट और ग्राफ के बेसिस पे आपको सेल्स एनालिसिस देखनी है, तो उसके लिए हमें सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। आइटम वाइज देखनी है, मंथली में जाएंगे, ऑल आइटम्स, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे
अब आपको क्या होगा कि पर्टिकुलर दिखा देगा कि जून मंथ में आपकी इतनी सेल हुई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा एनालिसिस दिखा देगा, इसका पाई चार्ट दिखा देगा कि इस मंथ पर्टिकुलर जिस जिस मंथ में जितनी सेल होगी वो दिखा देगा कि हाईएस्ट सेल कौन से मंथ में हुई है। तो पीक ऐसे वो ग्राफ की फॉर्म में आपको सेल्स एनालिसिस दिखा देगा। उसके बाद लास्ट क्या होता है कि आप मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में हमारे पास वेरियस रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। 100 रिपोर्ट्स ऐसी है कि आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आप लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, पर ओनर चाह रहा है कि वो रिपोर्ट चेक करना चाह रहा है कि आपकी टॉप मोस्ट आइटम्स कौन सी है जो सेल आउट हुई है। बिल रिसीवेबल की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, रजिस्टर देखना चाह रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो देखना चाह रहे हैं। तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू किसी भी लोकेशन से एक्सेस करके देख सकते हैं। Thank you for the precious time. I hope you are all understand the topic. Please do practice for your better knowledge. For further queries, our helpdesk team is just a call away. Helpline number and email ID is given in screen. Thank you all. Please note down the contact number and the email ID. कोई भी अगर आपको इशू आता है किसी भी तरीके का, तो आप ये कांटेक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्प डेस्क टीम अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगी। अगर आपके कोई भी अब डाउट्स हैं तो प्लीज आप Q&A में टाइप कर दीजिए, मैं हर क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगी। आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आएगा, आप उसमें सर्वे बता दीजिएगा कि आपको ये वेबिनार से कितनी नॉलेज मिली है और आपको ये वेबिनार कैसा लगा। प्लीज सर्वे पॉइंट दीजिएगा।
आई होप आप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू ऑल।